to pronounce. She is Assistant Director of Ministry of Education in Government of Sri Lanka, and this is our good opportunity to listen to her. And I thank for to Madam for accepting our request. She has been teacher of English communication skill and working in ministry from 2013. Earlier 14 years she has taught English, and she is TV presenter also. And this topic is very much useful for all the students. Madam, they are actually finally the students of Engineering College of Bihar. This program has been organized. So your experience and tips given to student will be very useful. So I request you to please start your session. Thank you, madam. Thank you, Maheshji. Today, our topic is interview skills. आप सब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के बाद आप जाएंगे कई इंटरव्यू पर। You will go for interviews in many places. Why? To find job. Actually, the first impression, the way you are dressed, your confidence level, Atmavishwas, the trust you have about you, आपको अपने पर कितना विश्वास है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि interviewers can see how confident you are. If you are fidgeting, if you are sweating, they know. तब आप आपके उंगली के साथ खेल रहे हैं और आपके सर पर और मुंह पर कितना पसीना है, ये लोग जानते हैं। If you are confident enough, you have to be cool in your words, very cool, because according to research, the interviewers select you within the very first minutes of an interview. They know who you are the moment they see you. They know what type of a person you are the moment they see you. Actually, when they get your CV, they read it from the beginning to the end. The way you present your CV is very important. You should not have spelling mistakes. You should not have any mistake at all. So, when you present your CV, the hard copy, to the company or to the university you're applying to, you have to be very careful. The rule is first things first. I hope you understand. What should come first? The most important things. Now look at this interview panel.
Can you see them? Do you think they are happy? Are they happy? Or are they sad? No, they are not happy. They are not sad. They are bored because they are not at all happy with the way that the interviewees have presented themselves. So, do you want your interview panel to be like this? I hope not. इसीलिए एक अच्छा सीवी प्रेजेंट करना और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। एक सीवी तो अपने आप। How to present the CV and how to present yourself before the interview panel. Look at their faces. One is asking questions. One is taking down notes. And the other is watching you very carefully. क्या आप सब जानते हैं इंटरव्यू से पहले वेटिंग टाइम में भी वो लोग आप सबको मॉनिटर करते हैं। कैसे? सीसीटीवी पर। This is a very latest trend. There are CCTV cameras, hidden cameras in the waiting rooms. Your behavior is monitored. The way you interact with the others, the way you react, the way you behave, everything is recorded. So, the moment you enter the interview room, or the moment you present yourself before the interview board, they know who you are. You know what? क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपका मैनर्स, बिहेवियर और आपका अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। Because it is easy to find qualified people, but it is not easy to find people with good manners plus the qualifications. The very first thing, you should know the background of the institute or the organization you plan to join. Suppose you want to join some engineering college or higher education institute for further research, for your master's, for your PhD, or perhaps to get working experience, a company. So, इंटरव्यू से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
Google is the most convenient way of collecting information. Or else you can collect paper cuttings, news, you can go to a library, read about that institute, find other documents about that institute, about the noted alumni, the very bright students who are already in the service. You should know about them all. Because who knows? They might ask you a question or two about the background of that institute. Therefore, you have to be prepared. That is a very important thing. Now let's move on to the next one. Mahesh Ji, the next slide, please. Next slide. Next is Mr. Manoj. Manoj sir, please move to next slide. Ji. Thank you, Manoj Ji. Manoj is doing. The next one is to be confident. मैंने पहले भी कहा, अपने आप को विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है. You have to have faith in you. If you think, oh, I may not be selected, I'm not qualified enough, there are so many other people with better qualifications, who am I there? They will not select me, I'm not a good candidate. If you don't trust you, how can you expect somebody else to trust you? Do you get my point? If you do not trust yourself, how can you expect the interview board to trust you, that you are a candidate fit for that job, that you are a candidate fit for that professional course? Now this picture, look at this picture very carefully. Confidence level low and high. The हरा वाला मतलब low confidence वाला, it's a big no. The लाल वाला or a high confidence is good, but too much confidence is not good. Got it? If you think, I'm the best, who are they to interview me? Who are they to judge me? I have all the qualification, I'm the best here. That is also not good. I am a Buddhist. As Lord Buddha says, middle path is the best path. You shouldn't have low confidence or very high confidence, but confidence in the middle level. Okay, I have completed all my qualifications. There may be some people with more qualifications, but I am confident about myself. Let's see. Let's face the interview and see. They might select me or they might not select me. If they don't select me, I will not be sad. I will try for another place, or perhaps this place the next time. So that is the level of confidence you should have. You should not be low confident or very high confidence. Confidence level should be moderate, the middle level, the medium level. You should not be overconfident or underconfident. That is one thing. Manoj, the next one. Manoj ne. Know your language. ये कैसा पॉइंट है? आप सबको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लैंग्वेज जानना, ये कैसा सवाल? हाँ, मैं बताऊंगी.
आप आपके फ्रेंड्स को कैसे आमंत्रित करते हैं? अरे यार, कैसे हो, क्या हाल चाल है, ऐसे बात करते रहेंगे। और सपोज यू मीट वन ऑफ योर टीचर्स, द प्रोफेसर्स, आप कैसे बात करेंगे? बड़ों के साथ कैसे बात करेंगे? फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करेंगे? टीचर्स के साथ कैसे बात करेंगे? ये अलग बात है। This is that. The level of formality, the level of formality in language. That is the communication skills. किसके साथ कैसे बात करेंगे? Look at these two ladies. They are also communicating. Very casual, friendly communication. Perhaps they are gossiping. Who knows? When you face an interview, you should know how to greet them, how to wait until they ask you to sit yourself down. Until they ask you to sit, don't sit. Go in, wait, just ask, may I come in? When they say okay, go in. Then when they ask you to sit down, sit down. When they start asking you questions, then only you have to start speaking. And again, in very polite language. The next thing is, if you ask, like, you have your colloquial language type. अरे यार, ये क्या ऐसा सवाल है? ये क्या है बे? Can you ask like that from an interviewer? No. If you don't understand a question, you're not supposed to be quiet, and you're not supposed to ask that type of a language question using that language. You can politely ask, excuse me, ma'am, excuse me, sir. Can you please repeat that question? That is how we have to ask about a repetition. And ask for a repetition in a very polite manner. This body language. Every movement of your body, even the way you make different faces, matter a lot. People know body language matters a lot. You have to keep eye contact with the person you are talking to. आंख में आंख डाल के बात करना बहुत important. And the posture. Look at these 4 people. They are standing in 4 different ways. Look at their legs. Look at their hands. Look at the way they are standing. It matters a lot. Standing upright, just like the man in the corner in the ash suit. Standing upright, straight, is very important. If you are like leaning on your leg, and if you are like scratching your head and doing all these unwanted things, they know that you are nervous. We all are nervous, When we face an interview, we all are nervous. Maybe. So chill. Be cool. Don't show your nervousness to the interview board. That is the most important thing. Don't show it to your interview board. That is your weakness. Why show it to the others? Don't show it to anybody. The way you stand, the way you look at them confidently is very important.
then they know that you know what you know. If you are not confident about what you know, they also know that. Keep that in your mind. Next, please, Manoj. Okay. This shows the way you are seated, even at the waiting room. Next slide. If you are Manoj ji. Haji. Previous, the one before. Okay, thank you. The way you are seated. The man in this turning chair, this one, that is also okay, but not okay for an interview. This shows that you are overconfident. This shows that you are not caring about the interview board. And look at the people below. Look at their faces. Some are nervous, some are just looking here and there, and they are like thinking, hey, क्या हो रहा है? What will happen to me? What is happening here? They're thinking about the possibilities of all negativities. ये लोग मुझे क्या सवाल पूछेंगे? क्या मैं उन सवाल को जवाब दे सकते हैं? What if I fail? ये क्या हो रहा है? What if I fail? What if I fail to answer the questions they ask? So they are nervous. Look at their faces. They are panicked. Don't let panic take you. Be cool. Be chilled. Okay? And the next very important thing, your dress. Let's move on to the next slide, please, Manoj ji. हाँ जी, ये क्या है? Straight wear. The short and what do you call it? Paliwal ji? ये नीला वाला short sleeve t-shirt. What do you call it in Hindi? Yes, ma'am. ये टी शर्ट और बरमूडा, इससे बरमूडा कहते हैं यहाँ पर मैडम इंडिया में, इससे बरमूडा नेकर, बरमूडा. हाँ. नेकर बरमूडा कहते हैं कॉमन या नेकर है. Or a हाफ पैंट. sleeveless t-shirt, half pants or the sleeveless t-shirt. Yeah. Is it suitable for an interview? Then going in casual with your t-shirt out and all these with Jeans. casual jeans and casual shoes, is it suitable? Even business casual? Oh, smart casual? Smart casual, okay. The first three are not okay. The Neela wala shirt and the trouser, okay, but with a tie. With a tie. Business informal and black tie semi-formal, that is okay. That is also okay. The smart casual is very much okay. If you want to have a coat, a blazer, you can go with a coat, but that means wearing a suit. Otherwise, having a smart casual with a tie is very much okay. For the girls, sari or kurta pajama in the sense the formal ones are okay, or you can go for the western type clothes, pants and shirts. That is also, it has to be very formal. You cannot go with the short crop tops or the, even if it is a sari, you have to drape it well and have your hair worn in a bun. In Sri Lanka, for people like us, high officials, wearing sari is compulsory.
Even the teachers in schools wearing saris is compulsory. University lecturers, sari is not compulsory, but many people wear saris. But for us officers in all the ministries and teachers, sari is compulsory. And the officers should wear the hair in a bun at the back of the head. That is compulsory. So there's a dress code. Even for the interview, you should go prepared. And the next thing is, you have to be prepared. For example, they will just ask, क्या हाल चाल है? आज का मौसम कैसे है? How are you feeling today? Is it raining? How's the weather? Are you comfortable? They might ask certain questions. How did you come? Where are you from? How did you come here? If it is a faraway place, when did you come? Today or yesterday, where did you stay? They will ask certain questions, If they suddenly ask some unwanted question like, how is your parents? Are they working? Or something like that you are embarrassed. Something that you don't want to talk about. How will you handle it? Suppose this is a very sensitive question, sensitive area. Suppose that if you don't have your parents, if you don't have your father, if you don't have your mother, if you don't have both, if someone asks about your parents, you definitely will get emotional. But at an interview panel, don't get emotional. Just directly tell them, my father is normal. मेरा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है. मेरे मामा अब इस दुनिया में नहीं है. Be confident and tell them directly. Don't show them your tears. Previous one, please. I'm still in the previous one, Manojji. If you have a very pathetic life story, if your story is a very pathetic one, you are not supposed to show it or show your emotions to the interview panel. Maybe we are from a very troubled background. गरीबी से घर से हो और बहुत दूर से हो. Doesn't matter. What matters is, amidst all these difficulties, you have come this far. You are a winner. Understood? Be happy and be positive that you are here. Don't think about the negativities and don't be emotional. If they ask unexpected questions, answer with confidence. Right? If you have to ask a question, don't let them feel that you are cross-examining or you are cross-questioning. Just ask for certain clarifications only. Right? Okay, the next one, please. You have to be courteous. You have to be very, very kind Next. and polite. At them. Yes, my it's okay. The right one is here. You have to be very friendly and courteous, not over-friendly, Huh? Don't be overconfident. Don't tell so many unwanted things. It is like if they ask you about the salary you expect, it is like, don't tell lies. It's like, I don't want a big salary. I don't want this. You can decide. No, don't. Tell them the truth, yeah. Tell them, okay, this is my qualification level. I have worked so hard to achieve this. So I expect at least 10,000, 20,000 or 30,000, whatever it is. Your worth. Just tell them. And if you
are already working, or if you have already worked, never tell anything negative about the previous workplace. Very important. Previous workplace. Understood? उसके बारे कुछ गलत मत कहना. Maybe it had not paid you the salary you wanted. Maybe the people have not given you chances. Maybe the people have mistreated you, ill-treated you. But still, don't say that to the interview board. They might think, this one will go from our organization and tell the same about our organization to the new organization. Don't give that idea to the interview panel. Be very courteous. You should know what to tell and what not to tell. You all are brainy people, huh? You all are educated people, engineering students, you know. But you know, when we become nervous, we forget everything. Not we actually, I forget everything sometimes, you know. I'm an experienced teacher. This is my 24th year in the government service. I worked as a teacher of English, language and literature for 15 years. While working as a teacher in a school, I worked as a visiting lecturer at the very prestigious University of Colombo at Aquinas College of Higher Studies. That is a very prestigious educational institute attached to the Catholic Church, right, run by the Archbishop of Colombo. And I worked at many other reputed educational institutes as a lecturer. But when I started working as a TV presenter of educational programs, the national TV, I was very nervous. I had butterflies in my tummy doing somersaults. Trust me, I was very nervous. It was a live program, my God. I was like, what am I to do here? Why am I here? Why did I come here? I was that nervous. But gradually, the second program and the third program, and I was like a pro. I was speaking to the entire country with so much confidence. Within 3 months, I became the host of the program. I started as a presenter, and the host was somebody else. And I gradually became the host. So that is how it started. The thing is that we should, have confidence, but not overconfident. You have to know who you are. You have to know what you know. You have to know what language you should use. And you have to be confident. Not too much, not too less. That is how you have to face an interview. If you go to the internet, if you Google interview skills, you will get a lot of things, one after the other. Right? Google Guru is the biggest guru in the world, But taking the best out of all the sources available is also a tactful thing. Here, I have given you some selected things through my experience because I have worked in interview panel. I have myself faced interviews and I come to this place and I have worked in interview panels. I have seen how people face interview. So I hope that you have got something from my presentation. And Palivalji, thank you so much for inviting me to join this meeting.
and giving this opportunity to speak to you. And I hope to work with you all if there's a chance in future as well, because I really enjoyed speaking to you all. Even though this is a virtual meeting, even though I don't see any participant here on my screen, I'm really happy about doing this workshop. Paliwalji, over to you. Oh, thank you, madam. Thank you very much Thank you, ma'am. Thanks a for lot for such sharing nice your informative session. valuable time for this webinar of this government engineering college. So, dear participant, now we are going to the next session. There will be 2 sessions, so please listen. So, the next session will be CV preparation. How to prepare the CV. So wait, we are starting in a minute. So it's loading the second page of the session. So please wait. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Now Yes, you go ahead. Yes, sir. should I start now? Yes, sir. Yes, sir. Now you go ahead. Okay, thank you. Thank you very much. So, in the first part, you had listened to Madam Anupa from Sri Lanka regarding this interview skills. She has talked about how to prepare for interview, your body language, presentation, because this non-verbal communication is very important, how you present in interview. So in this second part, now I will talk about CV preparation, because you get interview call. तो कि इंटरव्यू कॉल आपको कब मिलेगा? जब आपका सीवी अच्छा बना होगा. ठीक है, इंटरव्यू में तभी कॉल करेंगे. तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे. कुछ जगह पर रिज्यूम कहते हैं या फिर सीवी है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, रिज्यूम जो है एक पार्ट होता है आपका एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के ऊपर, और सीवी हमारा डिटेल एकेडमिक रिकॉर्ड है. ठीक है, जिसमें आपके सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन सभी चीज़ डिटेल में रहते हैं. और कई जगह रिज्यूम और सीवी एक ही फॉर्मेट में मानते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर सीवी कॉमन रहता है. करिकुलम वाइटे ये एक लैटिन वर्ड है. आपका डिटेल्ड एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एंड योर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, सब चीज़. तो अभी बात करेंगे उस फॉर्मेट के ऊपर कि हमको अपना सीवी किस तरीके से बनाना है, उस पर आगे बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड मनोज जी, आगे चलिए. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी यस. देखिए, सीवी में जो सेक्शन होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने बारे में जो लिखना है, योर नेम, और आजकल बहुत ज़रूरी है मोबाइल नंबर अपना देना. हर एक के पास मोबाइल है. और ईमेल एड्रेस, ईमेल हर एक के पास. ये इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस की बात आती है, क्योंकि कई बार क्या है कि आपका ऑनलाइन आपके इंटरव्यू होते हैं कई बार,
आपके फ़ोन पर ही इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है। फिर ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। टू डू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ जो भी आपकी ब्रांच है। और फिर उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री या डिप्लोमा जिस ब्रांच में किया है, और क्वालिफिकेशन के साथ ज़रूरी है आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। तो आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो हाईलाइट करने हैं उसमें। ठीक है, एजुकेशन के पार्ट आता है। वर्क एक्सपीरियंस, जो फ्रेश पास आउट हैं उनका एक्सपीरियंस तो उसमें नहीं होगा कुछ भी, लेकिन आपने कोई वैकेशन में ट्रेनिंग ली है तो वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने इस फील्ड में इस जगह पर ट्रेनिंग की है। फिर आती है बात स्किल्स की। स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप क्या परफॉर्म करना जानते हैं। आजकल ये कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़रूरी हो गया है। हर एक ब्रांच में आपने देखा होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सिविल वाले जो हैं, मेरे ब्रांच सिविल है, तो सिविल इंजीनियरिंग वालों को ये पूछा जाता है क्या आप कोई सॉफ्टवेयर जानते हैं। जैसे ड्राइंग के लिए होता है ऑटो कैड, मैकेनिकल में भी यूज होता है ड्राइंग आपको ऑटो कैड से। और सिविल का है स्टेट प्रो, स्ट्रक्चरल डिजाइन का सॉफ्टवेयर है। ई टैब यूज हो रहा है। तो अगर आपको कोई Okay, so dear participant, just wait a minute. We will get connected soon. Wait a minute. Okay, so dear participant, just wait a minute. Yes, sound will come after 1 minute. Just wait. Please wait.
हाँ हाँ सर करिए सर, यहीं सर यहीं से बोल दीजिए ना। हेलो। हाँ सर यहीं तो करिए ना। सर यहीं से बोल सर यहीं से बोल दीजिए ना। अच्छा। Okay, so wait a minute. Our expert is joining. Almost we have tried. You just wait 1 minute more. प्रॉब्लम तो हम बात कर रहे थे कि आपको
हेलो, यह सब ठीक है ना? सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। सम कनेक्शन प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। सो हम बात कर रहे थे स्किल की। स्किल में हमने बात करी कि आप कंप्यूटर स्किल क्या है वो लिखिए, कुछ न कुछ कंप्यूटर का कोर्स जरूर आप करें। ठीक है, आजकल क्या है, लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो कंप्यूटर के कुछ कोर्स कर लेते हैं ताकि उनका सीवी अच्छा बनेगा कि हमको ये चीज़ भी कंप्यूटर की आती है। तो जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड कहीं पर अप्लाई करना है तो वो एक पॉजिटिव एडवांटेज हो जाता है। अवार्ड की हमने बात की, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पढ़ाई के अलावा और भी क्या काम किया है। ठीक है, कुछ लोग गेम्स में अच्छे हैं, कुछ आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स, है ना, कुछ स्किल आपके साथ वो भी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करता है। इंटरव्यू में एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलता है। और सीवी आपका क्या है, देखिए जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो सीवी देख करके ही आपको कॉल आता है कि आपके अंदर क्या स्किल हैं। ठीक है, तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है। इसमें एजुकेशन की बात है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेश जो पास आउट हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। हर जगह यही कहेंगे भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो एक्सपीरियंस हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कुछ कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, आजकल ऑनलाइन बहुत से वेबिनार हो रहे हैं। देखिए ये इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा है तो इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि हमने ये वेबिनार ज्वाइन करा, इसमें ये सीखा है। वर्चुअल आजकल क्लासरूम होती हैं तो कुछ न कुछ आप लर्निंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं आजकल ये कोविड सिचुएशन में। फिर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, सिचुएशन, स्पेशल सब्जेक्ट आपने कोई पढ़े हैं क्या, तो वो होता है आपका इलेक्टिव। जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर में होते हैं तो उसको आप हाईलाइट करिए और उस चीज़ की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपका एरिया एक बनेगा कि इस एरिया में हम काम करना चाहते हैं। फिर कोई ट्रेनिंग आपने जो वैकेशन में आपने ट्रेनिंग ली है तो वो ट्रेनिंग अच्छे से करके उसकी सर्टिफिकेट मिलता है। तो वहाँ पर क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग हुई, उसको आपको फोकस करना है। ठीक है ना, ताकि इंटरव्यू में आपको उस तरफ ले जाना है कि सवाल आपके लिए उस तरफ से, उस एरिया से पूछेंगे। और मॉडिफाई सीवी कहते हैं कि हमको अपना सीवी टाइम टाइम पर मॉडिफाई करना है। वो कब होगा, जब आप कुछ नया ट्रेनिंग साथ में करते रहेंगे, अपडेट करेंगे अपने आप को। और ये इंडस्ट्री रिलेटेड हो सकता है और टेक्निकल बैकग्राउंड आपका, जैसे मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आपको कुछ चीज जानकारी अपनी मशीनरी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है ना, एबल टू इंडिपेंडेंटली आप क्या कर सकते हैं, वो स्पेशलाइजेशन आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल तो बड़ी ब्रांच है, इसमें से पर्टिकुलर एरिया आपको सेलेक्ट करना है। अब बात आती है अच्छा सीवी कैसे लिखें, तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है, आपको अपना सीवी खुद लिखना है, दूसरे का कॉपी नहीं मारना है। ठीक है ना, हम जो अपने बारे में खुद जानते हैं वही लिखना है। और इसमें फिर जो फॉर्मल स्टाइल एंड विजुअल पावरफुल अच्छा दिखना चाहिए। आजकल बहुत से कंप्यूटर में आपने देखे होंगे कि उस पर आपको सिर्फ डेटा फीड करना है, फॉर्मेट मिलता है आपको और आपको उसमें फिलअप करना है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, दिखने में अच्छा लगे, इजी टू रीड, पढ़ने में अच्छा हो। मतलब इजी टू रीड का मतलब यहाँ पर है उसका लेटर साइज फॉन्ट प्रॉपर हो जो पढ़ने में आसान रहे। बहुत छोटा फॉन्ट या आर्टिस्टिक आपको लेटर्स यूज नहीं करने हैं। लेटर का साइज, स्पेसिंग, ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरी बात, टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए, मैडम ने भी बात करी थी। अगर आपका सीवी में ही अगर एरर है, इंग्लिश का मिस्टेक है, तो वहीं पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कहेंगे जब इनको सिंपली स्पेलिंग नहीं आती है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आपका बनता है। तो स्पेल चेक लगा करके आप उसको देखें, आपने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। फिर है बात ब्रीफ क्लियर हो, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है ना, शॉर्ट में आपको लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस में अपने बारे में। एंड फोकस ऑन स्किल, स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ अच्छे से जानते हैं। अब कुछ बातें जो न आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको सीवी में नहीं लिखना है। पहला आता है ओवर स्टेट। कभी भी
अपने बारे में ज़्यादा जानकारी ऐसी ना लिखें जिस पर अगर सवाल पूछा जाए तो आप जवाब नहीं दे पाएँ, ठीक है ना? आपने लिख दिया कि हमको इतने सॉफ्टवेयर आते हैं, इतने स्किल्स हमारे अंदर हैं, किसी से कॉपी किया, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएँगे, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको जज कर लेंगे कि आपने यहाँ तो लिखा है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए उतना ही लिखें जो आप जवाब दे सकें। फ़ॉल्स गलत और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। और फिर है अनवेरिफाइबल स्टेटमेंट। अनवेरिफाई मतलब है कि आपने लिख तो दिया लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है उसका। आपने लिखा हमने यहाँ पर ट्रेनिंग किया इस इंडस्ट्री में, लेकिन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना? वही डॉक्यूमेंट जो लगे हैं उसी को हम अपना सीवी में लिखें, जो भी ट्रेनिंग आपने ली है उसका सर्टिफिकेट। देखिए कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपका कागज़ बहुत ज़रूरी है, पेपर, एविडेंस हर जगह पूछेंगे एविडेंस आपका क्या है कि आप ये जानते हैं, ठीक है ना? लिखने को सभी लिख देंगे लेकिन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है, कई जगह क्या होता है ना, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं माँगी जाती हैं तो ये नहीं लिखना है, जब तक कि पूछा ना जाए। जैसे हाइट के ऊपर है, वेट है, हाइट का ये आर्मी वगैरह में वहाँ पर हाइट का ज़रूर स्टैंडर्ड होता है। डिफेंस सर्विसेज में जब जॉइन करते हैं तो हाइट के उनके कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि मिनिमम हाइट, जैसे पुलिस की सर्विस है वहाँ पर हाइट। लेकिन जब तक ये पूछा ना जाए तो हमको सीवी में ये चीज़ नहीं लिखनी है। वेट नहीं लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ है, हेल्थ कंडीशन, रिलीजन, आजकल है ना ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पॉलिटिकल एफिलिएशन कहलाता है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो नहीं लिखना है कि हम इस पार्टी से इसके मेंबर हैं या इसके लिए काम कर रहे हैं। बिहार में आज पेपर में था कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है डेट उसका, तो वो चीज़ नहीं देना है। और फिर है अपीयरेंस। सीवी आपका जो पेपर है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। स्पेटियल अरेंजमेंट कहते हैं कि आपने कुछ तरीके से उसको पेपर बना, ये नहीं कि आधा पेज खाली हो रहा, एक तरफ लिखा है आपने, तो एक बैलेंस रहना चाहिए, पेज पूरा भरा हुआ अच्छा दिखाई दे। फोटोग्राफ कहाँ पर लगना है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऊपर, एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन, तो देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इसके लिए आप आजकल इंटरनेट पे बहुत से फॉर्मेट मिलते हैं, आप अगर उसमें डालेंगे ना सीवी प्रिपरेशन तो बहुत से आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपनी डालिए, है ना? जो आपको अट्रैक्टिव लगे, यह है कि वो पढ़ने में आना चाहिए प्रॉपर और दिखने में अच्छा हो। फ़ॉन्ट साइज़ उसके लिए होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ आपको लेटर का 11 से 12 के करीब रखें। ये देखिए फ़ॉन्ट का स्टैंडर्ड बता रहे हैं। टाइम्स और एरियल में आप टाइप करेंगे तो ये अच्छा दिखता है, और हेडिंग जो हैं वो एरियल और या फिर हेल्वेटिका करके रहता है, तो ये देखने में ना अट्रैक्टिव लगता है दूर से, डेवलप्स विजुअल इंटरेस्ट। और कुछ कॉमिक सेंस और जैसे ल्यूसिडेंट राइटिंग है, कई बार आर्टिस्टिक बनाने के लिए अगर हम ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो पढ़ने में अच्छा नहीं दिखेगा, तो वहीं पर आपका एक नेगेटिव पॉइंट इंटरव्यू के लिए बनता है। कभी भी आर्टिस्टिक फ़ॉन्ट में सीवी नहीं बनाना है। और लेटर साइज़ जो है 11 से 12 पॉइंट के रखें, हेडिंग को बोल्ड रखना है और स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, 1 टू और 1.5 तक स्पेसिंग रखें, जो आपको पढ़ने में ईज़ी रहे, जो इंटरव्यू वर्ड है जिसको देखें, ठीक है? तो नेक्स्ट मनोज जी आगे चलिए। फिर है आपके मैचिंग स्किल की बात। इसमें जो एम्प्लॉयर आपके हैं वो क्या चीज़ देखते हैं, आप में जो एम्प्लॉयर की ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं आपकी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये स्किल देखी जाती है जो जवाब आप दे रहे हैं, ठीक है ना? आपके यहाँ कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, सेमिनार होता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, वर्बल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन। टीम वर्क की बात आती है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं, टीम वर्क, ग्रुप वर्क के ऊपर है, लीडरशिप कहलाता है
किसी काम को करने के लिए लीड लेना, इनिशिएट करना। वो आपको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड पूछेंगे कि आप इस काम को कैसे करेंगे, कैसे इनिशिएट करेंगे। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, क्या आपने इसके लिए कुछ वर्क किया। टीम वर्क और लीडरशिप स्किल के लिए, इसके लिए क्या होता है ना, आपके कॉलेज में जो बहुत से फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें आप किसी कमेटी के मेंबर रहे थे क्या, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट काम आते हैं कि आप ये कमेटी, ये फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पर ये चीज टीम वर्क की बात आती है। ऑर्गेनाइजिंग सम फंक्शन, स्पोर्ट्स है। लीडरशिप इज टेकिंग इनिशिएटिव, लीड रोल इन एनी एरिया फंक्शन। जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बहुत जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पहले डायरेक्ट होता था। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी एक लीडरशिप का आपका एक सर्टिफिकेट है कि आपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का रोल किया, या अपनी किसी ग्रुप के आप मेंबर रहे, ठीक है ना। बहुत सी सोसाइटीज होती हैं, ग्रुप्स हैं। इनिशिएटिव लेना किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी कहते हैं ग्रुप ऑफ स्किल्स, कि क्या चीज आप अपने सब्जेक्ट में, एरिया में कर सकते हैं। जैसे सिविल का एग्जाम्पल देते हैं, सिविल वाले जो सुन रहे हैं, आपको मटेरियल टेस्टिंग आता है अच्छे से, तो आप उसमें लिख सकते हैं आई नो द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। जैसे स्टील है, सीमेंट, कंक्रीट, इसका टेस्ट हम करना अच्छे से जानते हैं। तो ये आपने लिखा है इसमें, तो आपको उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चेक क्वालिटी ऑफ ऑटोकैड जैसे है, टेक्निकल में आ जाएगी। फिर यूर एविडेंस का मतलब प्रूफ क्या है। ये एक फॉर्मेट देखिए सीवी राइटिंग के, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ कई जगह पूछा जाता है। एज के प्रूफ निकालने के लिए कई जगह होता है ना कि एज की लिमिट होती है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में वहां पर डेट ऑफ बर्थ जरूरी रहता है कि इतने साल से आपकी एज कम है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एज कैलकुलेशन के लिए जरूरी रहता है। मोबाइल नंबर आजकल जरूरी है, बहुत से इंटरव्यू मोबाइल से, फोन पर इंटरव्यू होते हैं। ईमेल एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, और डेली आप ईमेल को सर्च भी करते रहें, कहीं अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में तो मेल आपको आजकल, पहले टाइम में क्या था कि कॉल लेटर बाय पोस्ट आता था, आज टाइम है ईमेल के थ्रू या मोबाइल में एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते हैं। प्री टेस्ट होता है या स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, बाद में आपका वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर एड्रेस हो। देन नेशनलिटी, इसमें सबका इंडियन है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव एक ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। एक हमने देखिए यहां पर लिखा है सेंटेंस, लुकिंग फॉर ए चैलेंजिंग पोजीशन इन द फील्ड ऑफ डैश डैश। तो यहाँ आपकी जो ब्रांच है, उस ब्रांच में जो आपका स्पेशलाइजेशन जिस एरिया में करना चाहते हैं, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे सिविल वाला लिखेगा इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वाला लिखेगा जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, तो इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, तो आपको। फिर बात आती है देखिए फोटोग्राफ, फोटो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आपका देखिए 2 फोटो इसमें दिखाए गए हैं, ऊपर का रॉन्ग है, नीचे करेक्ट है, क्योंकि ऊपर जो फोटो दिखा है इसमें आपकी लाइट प्रॉपर फेस में नहीं आ रही है। चेहरे में आपका पूरा लाइट पड़ना चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है ना। फोटो ये नहीं कि आजकल लोग सेल्फी अपना लेते रहते हैं, वही फोटो उन्होंने लगा दिया उसमें। तो फोटो आपकी पर्सनैलिटी का पहला पॉइंट होता है जो आपके बारे में बताता है। कोई भी आर्टिस्टिक फोटो नहीं लगाना है कि आपको, इसलिए फोटो स्टैंडर्ड, लाइट उसमें प्रॉपर हो, बैलेंस दिखे, ठीक है ना। अच्छा फोटो आप स्टूडियो में बढ़िया, और बैकग्राउंड आपका प्लेन रहना चाहिए, ये नहीं कि बैकग्राउंड में भी आपका कलरफुल रखा है, तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन आपके वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके आपका एक्सप्रेशन। दूसरा एक फोटो और देखिए, यहाँ पहला फोटो देखिए ऊपर जो दिया है, ये अगर फोटो लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सामने नहीं देख रहे हैं, कुछ आप आर्टिस्टिक वे में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री
के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि आप आर्टिस्टिक पोज में कोई फोटो दे रहे हैं, तो ये फोटो आपको ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है ना, फोटो क्लियर दिखे और सामने देखते हुआ नजर। ये एक स्टैंडर्ड देखिए फोटो है, इसमें क्लियरिटी आ रही ना, पूरा प्लेन बैकग्राउंड है और दूसरा ठीक सामने हम नजर देख रहे हैं। तो इस तरीके का फोटो आपका, और शर्ट आपकी प्लेन हो और हो सके तो व्हाइट, या तो शर्ट में टाई वगैरह लगे हो जैसे अगर आप जैसे यूज करते हैं, लेकिन फेस आपका क्लियर सामने दिखना चाहिए। फिर आपका सीवी में बात आती है, हेडर जो है ऊपर ना, सबसे ऊपर हेडर में आप नाम, मोबाइल नंबर, ये इंफॉर्मेशन, ईमेल और एड्रेस हेडर पोर्शन में ऊपर लिख सकते हैं। ये कॉमन जो रहता है, ताकि पहला ध्यान इस पर जाएगा और इसके बाद फिर बाकी इंफॉर्मेशन नीचे स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सीवी के लिए। और फिर आपका फिर आता है हेडर के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल क्या है। ऑब्जेक्टिव हमने एक आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, ठीक है ना, एक लाइन में एक सेंटेंस लिखना है। और जॉब प्रोफाइल, देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल वाले हैं, ऑटोमोबाइल में काम करना चाहते हैं। प्रोफिशिएंट इन डिजाइनिंग, देखिए उनकी क्या प्रोफिशिएंसी है, उसने बी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है एंड है प्रोफिशिएंट इन डिजाइनिंग टूल, मतलब टूल डिजाइन उनको अच्छे से आता है, तो यहाँ लिखेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों का है जैसे कमांड इन नेटवर्क, नेटवर्क उनको अच्छे से आता है, ये स्पेशलाइजेशन का है। डिजाइन मैनेजमेंट प्रोफेशनल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल रिसर्च, तो अपना हमको पर्टिकुलर एरिया में उसको हाईलाइट करना है, अपनी क्वालिफिकेशन को, स्किल को, तभी वो आपको कॉल वहां से मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। एजुकेशन तो आप लोग सब अभी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे, बाकी डिप्लोमा डिग्री जो लोग सुन रहे हैं, उसमें आता है कि आपने कहाँ से किया है, बोर्ड है ना, वो तो उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जरूरी है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी वैकेशन होता है उसमें कुछ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग करते हैं, तो वो अच्छा जगह पर करिए जहाँ पर अच्छी इंडस्ट्री है। रूरल एरिया में तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए कि जहाँ पर आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग मिल सके, या कंप्यूटर बेस्ड आप ऑनलाइन कहीं पर ट्रेनिंग होती है, तो ये आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करता है। और प्रोफेशनल स्किल आपकी क्या है, आईटी सॉफ्टवेयर की जैसे हमने बात करी, कंप्यूटर वाले जानते हैं, लेकिन और ब्रांच वाले भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग सभी ब्रांच में हो रहा है, तो उसकी जानकारी होना एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। कोई स्पेशल कोर्स किया कि आपने, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। जैसे ये वेबिनार आजकल है ना, तो ये वेबिनार भी एक तरीके के सर्टिफिकेट हैं। आप देखिए नेट में बहुत से आपके एरिया में सब्जेक्ट में बहुत से वेबिनार जो चल रहे हैं, और उसको आप अटेंड करिए। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं, उसको अटेंड करके फिर आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं ना। फिर बात आती है अचीवमेंट में क्या चीज़ लिखना है। कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है क्या, मेरिट स्कॉलरशिप, तो वो आप लिख सकते हैं। कोई अवार्ड मिला है आपको, प्राइज है ना, ये आपके सीवी को स्ट्रांग बनाता है। आपको नॉमिनेट किया गया किसी कमेटी में, प्रोफेशनल सोसाइटी की मेंबरशिप होती है। स्टूडेंट के बहुत से चैप्टर होते हैं आजकल, एक होता है सोसाइटी ऑफ टेक्निकल, आईएसटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कुछ मेंबरशिप है ना, अपने कॉलेज में बना सकते हैं। अब है वॉलेंटियर, हाँ पीछे थोड़ा, अच्छा ये देखिए, हाँ वॉलेंटियर एक्सपीरियंस, ये भी बहुत जरूरी है आजकल। ये शो करता है आपकी पर्सनालिटी को, आप सोशल वर्क किया। जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है देखिए, तो आप लोग कोविड-19 के लिए इस तरीके से कुछ पोस्टर के थ्रू क्या आपने बनाया है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए क्या उपाय हैं। तो ये चीज़ें अगर शब्दों में बताएंगे तो उतना ध्यान नहीं जाएगा। अगर आप कुछ पोस्टर के थ्रू, आपके कॉलेज में जैसे कुछ पोस्टर कंपटीशन होता है, तो उसमें आपको अवार्ड मिलता है, आपने पोस्टर बनाया, लोगों को अवेयर किया। ये एनएसएस होता है, ठीक है ना, लोगों को अवेयर करना। तो ये एक सोशल वर्क
के अंदर आता है आपका वॉलंटियर वर्क। और ये आजकल बर्निंग इश्यू है कोविड-19 का। बिहार में भी केस वगैरह अभी तो कम है, बढ़ रहे हैं, बड़े शहरों में बहुत तेजी से कोविड-19 बढ़ रहा है। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस करना, लोगों को जाके बताना इसकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखना है, पोस्टर बनाना, लोगों को अवेयर के बारे में अवेयर करना, ये सोशल वर्क। तो ये चीज़ें भी आप अपने सीवी में लिख सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, कौन सी भाषा आप जानते हैं? लैंग्वेज में क्या आता है देखिए, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों चीज़ें आपको देखिए, दो तो सबको आनी ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि आज क्या है, आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंग्लिश बहुत जगह पर हिंदी लोग नहीं समझते हैं। जैसे साउथ में आप जाएंगे, साउथ में हिंदी लोग नहीं समझते। जो मैडम आई थी वो अच्छा हिंदी बोलती थी, वो क्योंकि इंडिया से उनका ओरिजिन, उनका इंडिया से है। तो जितनी आप ज़्यादा भाषा जानते हैं ना, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। और बल्कि कुछ स्टेट में तो बाद में आप जॉब में भी लगते हैं, तो आपको वहाँ का एग्ज़ाम सब्जेक्ट, वो रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम पास करना पड़ता है 1 साल के अंदर। महाराष्ट्र में तो मराठी या गुजराती, गुजरात, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच और जर्मन की क्लास बहुत जगह होती हैं। जैसे आप विदेशों में जाते हैं, जर्मनी में अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, तो जर्मन में ही पढ़ाई होगी। तो जर्मन आपको आनी चाहिए वहाँ स्टडी के लिए। फ्रांस में फ्रेंच है, रशिया, हायर स्टडीज़ के लिए जो लोग सोच रहे हैं, तो ये लैंग्वेज का भी जो आप जानते हैं, तो कम से कम 2 तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तीनों उसमें, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है ना? अब बात आती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वो आइडेंटिफाई करनी है कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं, कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए एविडेंस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर एरिया में आप अच्छे हैं तो उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट प्लान टू ओवरकम वीकनेस, ये अपना खुद एनालिसिस करना है। और जो आपकी कमजोरी है उसको हम दूर करने के लिए कोशिश करें। जैसे कम्युनिकेशन स्किल का ही है, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करें, खुद कोशिश प्रैक्टिस करके। मैडम भी बता रही थी कि वो टीवी प्रेजेंटर भी रही थी बीच में। तो जब आप नया कुछ पोजीशन में जाते हैं तो एक हेजिटेशन होता है, उसको दूर करने के लिए क्या है कि प्रैक्टिस से ही दूर होगा। फिर आपका कुछ इंटरेस्ट, हॉबी बहुत ज़रूरी है देखिए। जैसे आपका हॉबीज़ स्पोर्ट्स वगैरह में हो सकता है, ठीक है ना कुछ, तो उन हॉबीज़ को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और हॉबीज़ लिखें तो ये पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपकी हॉबीज़ हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आपको फिर पूछ सकते हैं। देन एक्वायर बेसिक नॉलेज अबाउट योर हॉबी, जो हॉबी आपकी है तो उसके बारे में जानकारी भी आपको रहनी चाहिए, नहीं कि खाली हमने लिख दिया लेकिन पता नहीं है। और कई जगह पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखने होते हैं, जैसे फादर का नाम, मदर, डेट ऑफ बर्थ कई जगह अवॉइड होता है, मैरिटल स्टेटस, है ना, परमानेंट एड्रेस। तो जहाँ पर ये नहीं पूछा गया है तो उसको हम अवॉइड करें। मेन फोकस हमको अपनी स्किल के ऊपर करना है, क्वालिफिकेशन, और दूसरा स्किल, हमें क्या चीज़ अच्छे से करना आता है जो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, इसको देखिए। एक रिसर्च की गई, रिसर्च में ये देखा गया कि जो इंटरव्यू में लोग अपीयर हो रहे हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनमें किस चीज़ की कमी थी। तो ये देखा गया, देखिए, ग्रामर और टाइपिंग एरर में करीब देखा, जो लोग अप्लाई करते हैं 77% लोग ग्रामर और टाइप में एरर उनकी रहती है सीवी में। तो इसलिए आप भाई इसको चेक कर लें, ग्रामर की मिस्टेक, ग्रामरली, और ये आपका स्पेल चेक करके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसको पहले स्पेलिंग चेक कर लीजिए। फिर अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आपका आपके नाम से सही लगना चाहिए, कोई फनी नेम इस टाइप का नहीं लगे, ठीक है ना? प्रॉपर एक आपका एड्रेस होना चाहिए। और नो क्वांटिफाइबल अचीवमेंट, कोई स्पेशल अचीवमेंट उनका नहीं था। तो ये अब फ्रेश जो पास आउट होते हैं, तो वो लोग कैसे करें इसको कि आप कुछ ट्रेनिंग
पहले से लेके रखें जो उसमें सीवी में लिख सकें, वैकेशन पीरियड में या ऑनलाइन फॉर्मेट में, ठीक है ना। और टेक्निकल की बात आती है, बेसिक जॉब कॉम्पिटेंसी, बेसिक एकदम नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्किल हो, मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। इंटर्नशिप होती है, प्रोजेक्ट, दूसरा फाइनेंस